Welcome students. So today we will discuss about the next chapter. The very first chapter is called the cell division. So in last class you have studied about the cell, what is cell, and how it will help in the formation of organs. So you know very well that is cell is what the basic structural functional functional unit of life. Okay, but now in this class we will study about the cell division. Okay, cell division, how it will take place and what are the outcomes of cell division. All that things we will study in this cell division. But before beginning the cell division, we have to know that little about the chromosome. Little about the chromosome. So we all know that chromosomes. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द क्रोमोसोम एक्चुअल में है क्या, ये आता कहाँ से है. सो यू हैव स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. In this structure you have seen the little one structure, that is called the controlling structure of the cell. It's called controlling structure. Its name was nucleus. Okay, nucleus. So this is called the controlling structure. So in this nucleus, when the cell division will take place, then the fluid, you know very well the fluid called nucleoplasm. Okay, called nucleoplasm. So that nucleoplasm will start thickening. Okay, start thickening. After thickening, I will write here, after thickening, some थ्रेड धागे के जैसे थ्रेड लाइक structure will formed. The formation will take place by the condensation of nucleoplasm. That's why chromosomes are called as highly condensed coiled chromatin fibers and known as chromosome chromosomes. Okay, so their formation will take place after the condensation. That's why they are known as the highly condensed coiled structures. Okay, they are called chromosome, and this chromosome will help to initiate the process of cell division. So in your book, chromosome topic is given just after the first chapter, that is called the cell division. So in the same way we will also discuss here, but before beginning cell division, we have to discuss some of the part of chromosome for your better understanding. Now we will move forward towards our cell division. I hope this much you have understand very well. Now next we move on the cell division. So cell division or cell cycle, both are the similar thing. So why cell division is necessary? So cell division is necessary for our for growth. Our growth means body growth. For growth, for development, for reproduction, for repairment, and for replacement. Okay, so for these four process we need cell division.
सो हमारी बॉडी की ग्रोथ कैसे हो रही है, उस ग्रोथ को सपोर्ट कौन करेगा, उसके लिए सेल डिवीज़न ज़रूरी है। डेवलप हो रही है, पहले आप छोटे थे, धीरे धीरे ग्रो कर गए, तो ये जो डेवलपमेंट हुआ दिस इज़ कॉल्ड बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीज़न। इसके बाद अगर आपको कहीं कुछ भी इंजरी होती है, वो इंजर्ड पार्ट आपका रिकवर होता है, वहाँ के टिश्यूज़ फिर से रीबिल्ड होते हैं। फॉर दैट वी नीड सेल डिवीज़न। और कोई नई सेल की फॉर्मेशन यानी यंग वंस की बर्थ के लिए जब नई बॉडी की फॉर्मेशन होती वहाँ पर सेल डिवीज़न नेसेसरी होता है। तो दिस इज़ द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सेल डिवीज़न for what it is being necessary. You will get more detailed in your textbook, read there also. So this is the basic introduction of cell division and its importance. So अगर cell division नहीं होगा तो होगा क्या? Now we discuss about the importance. So we have understood easily that is we need cell division for growth. तो अगर cell division नहीं होगा तो हमारी body की growth नहीं होगी. Meanwhile to say that कुछ साल पहले अगर आप देखें खुद को तो आपकी हाइट कम थी, आपका वेट कम था, बट स्लोली स्लोली व्हाट हैपन, आपकी हाइट बढ़ गई, आपका वेट बढ़ गया। सो दीज थिंग आर पॉसिबल फॉर द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। एंड बहुत सारे फिजिकल फीचर्स, बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आपकी बॉडी में आए। सो बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन दैट चेंजेस विल came in your body. So that is the importance of cell division. अब cell division basically होता कहाँ है? अब सेल डिवीजन होता कहाँ, इसको जानने के लिए हम इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो सेल डिवीजन बेसिकली कंसिडर्ड इन टू टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स, दैट इज कॉल्ड द माइटोसिस एंड मियोसिस। नाम थोड़ा सा टिपिकल है बट आप इसको बार बार प्रोनाउंसिएट करिएगा, याद हो जाएगा। माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस इज व्हाट? माइटोसिस मीन्स ऐसा सेल डिवीजन जो बॉडी सेल्स में होता है। यू कैन से दैट साइंटिफिकली सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक का मतलब होता है बॉडी सेल्स, यानी हमारी बॉडी की ग्रोथ में जो सेल डिवीजन हो रहा है दैट इज कॉल्ड द बॉडी सेल्स, दैट इज कॉल्ड माइटोसिस। मियोसिस दूसरा है मियोसिस। मियोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड हाफ रिडक्शनल फेज डिवीजन। क्यों? बिकॉज दिस सेल डिवीजन विल टेक प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स क्यों? क्योंकि जब यंग वंस की फॉर्मेशन होती है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस मियोसिस विल टेक प्लेस। और ये जर्म सेल्स में होती है। कहाँ पर होगी? जर्म सेल्स। जर्म GRM नहीं होगा यहाँ पर। जर्म्स का मतलब ये नहीं है कि हाँ कोई जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह, यहाँ पर जर्म्स का मतलब है रिप्रोडक्टिव सेल्स। ओके, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन विच आर located at different places. So now we move forward. We have seen here the karyokinesis is also mentioned. So mitosis क्या है? माइटोसिस की जब प्रोसेस होगी तो माइटोसिस की प्रोसेस किसको लेकर के होगी? हमारे न्यूक्लियस के डिवीजन को होगी। अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्रोमोसोम फॉर्मेशन होगा। एग्जैक्टली तो क्रोमोसोम कब फॉर्म होगा? जब हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होगा। एंड द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे उसको? कैरियोकाइनेसिस। सो वी कैन सिंपली define that the division of nucleus is called कैरियोकाइनेसिस। अगर अब इसके जस्ट अपोजिट है क्या? साइटोकाइनेसिस। तो उसको भी यहीं पर हम एक बार रिव्यू कर लेंगे। साइटोकाइनेसिस व्हाट? साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो याद करने में आसानी रहेगी। साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस, दो बार बोलेंगे, रिपीट करेंगे। साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस, दैट इज कॉल्ड द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। सो इस तरह से साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होंगे। बट जो मेन बिगिनिंग का स्टार्टिंग काम है वो किसका होगा? कैरियोकाइनेसिस। सो कैरियोकाइनेसिस विल डायरेक्टली इनिशिएट द सेल डिवीजन। तो यही कैरियोकाइनेसिस आगे सेल डिवीजन को इनिशिएट करेगी और हमारी नई सेल्स की फॉर्मेशन बनेगी। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेल डिवीजन, सेल का कोई पर्टिकुलर सेल, अब यहाँ पर कोई, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये सेल कौन सी, हमारी बॉडी की रिप्रोडक्टिव सेल्स को हटाकर कोई भी सेल हो सकती है। रिप्रोडक्टिव सेल्स को हटाकर कोई भी सेल हो सकती है। तो वहाँ जो प्रोसेस होगी दैट इज़ कॉल्ड द कैरियोकाइनेसिस। और
इस प्रोसेस की बिल्कुल स्टार्टिंग में एक स्टेज आएगी, दैट इज़ कॉल्ड द इंटरफेज। इंटरफेस का मतलब ये है जैसे आप किसी रूम में एंटर करते हैं अपनी काम को करने के लिए, बैठने के लिए या पढ़ने के लिए, लाइक दैट हियर इज ऑल्सो, यहाँ इंटरफेस जो होगा वो सेल की प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए होगा। सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरफेस। सो इंटरफेस इज़ वेरी इनिशियल, यानी सबसे पहला फेज, इसलिए उसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, सो वी हैव द इंटरफेस आफ्टर जस्ट फिनिशिंग द इंटरफेस। तो इंटरफेस में क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया है कि क्रोमोजोम की फॉर्मेशन होगी, तो दैट फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोजोम्स विल टेक प्लेस बाय द थिकनिंग ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड इंटरफेस। उसको हम इंटरफेस कहेंगे, आप अपनी बुक में देखते रहिए बराबर, दैट इज कॉल्ड द इंटरफेस। एंड जस्ट फिनिशिंग, अब इंटरफेस के ख़त्म होते ही होते दूसरा फेज़ आएगा, दैट इज कॉल्ड द प्रोफेज। कौन सा फेज़ आएगा, प्रोफेज। अब इंटरफेज और प्रोफेज दोनों के बीच में कोई बहुत ज़्यादा टाइम लैग नहीं होगा, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, और शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद इंटरफेज से सीधा जो सेल है वो प्रोफेज में मूव कर जाएगी। सो प्रोफेज, प्रोफेज मतलब प्रिमिटिव फेज, सबसे पहला फेज। प्रोफेज की हम बात करेंगे तो प्रोफेज इज़ द प्रिमिटिव फेज। दिस प्रिमिटिव फेज, प्रोफेज में क्या होगा, अब इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे पहचानेंगे कि ये प्रोफेज है, तो आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, क्रोमोजोम्स बिकम डिस्टेंट एंड ऑलरेडी गेट डुप्लीकेटेड। अभी आपने पढ़ा कि इंटरफेज में क्रोमोजोम फॉर्म हुए, तो यहाँ क्या होगा, क्रोमोजोम बहुत ज़्यादा थिक हो जाएंगे और डुप्लीकेशन हो जाएगा। डुप्लीकेशन मतलब जो आपको क्रोमोजोम दिख रहे हैं ये अपने हमशक्ल तैयार करेंगे। ठीक है, हंसने की बात नहीं है, आप देखते जाइए, आपके फिगर में नज़र आएगा, ये अपने डुप्लीकेट तैयार करेंगे, और डुप्लीकेट तैयार करने के बाद फिर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सबसे बड़ा इसका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है, जो कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। फिर क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड। अब ये जो आपको दिख रही हैं इनको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलेंगे। ये दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे से एक छोटे से जंक्शन से जुड़े रहेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। अब सेंटर में है तो इसका नाम हो जाएगा सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। ईच अदर स्मॉल रीजन कॉल्ड द सेंट्रोमियर। इसके जस्ट खत्म होते ही हमारा एक और फेज़ आएगा। अब उससे पहले आप कंफ्यूज ना हो, आपकी बुक में प्रोफेज दो पार्ट में दिया गया, ए बी। ए बी क्या है, एक अर्ली प्रोफेज है, एक लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज का मतलब ये है कि जब प्रोफेज आपका स्टार्ट हुआ, और लेट प्रोफेज का मतलब क्या है, जब प्रोफेज खत्म हो रहा उसके बाद जस्ट मेटाफेज स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया कि लगभग सारे फेजेस को ए बी में डिवाइड किया गया है। उसका कोई अलग मतलब नहीं, बस उनकी स्टार्टिंग और बिगनिंग और एंडिंग की बात की गई है। अब मेटाफेज की बात करेंगे तो मेटाफेज में देखिए आप, क्रोमोजोम क्या होगा, इसकी पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन में, क्रोमोजोम अटैच टू स्पिंडल फाइबर्स। आप बुक में देखिए अपने फिगर में, तो देखिए कुछ स्पिंडल फाइबर्स दिए गए हैं, उनसे ये अटैच हो जाएंगे जो क्रोमोजोम आपके बने हैं, और क्रोमोजोम सेंट्रोमियर से पूरी तरह से अटैच रहेंगे। फिर दूसरा एक पॉइंट इसी में आ जाएगा कि सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे, हाफ प्लेन इक्वेटर पे आकर के अरेंज हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है। एग्जाम में आप इसके बेसिस पे मेटाफेज को इजीली कंसिडर कर लेंगे कि मेटाफेज है, और अपने क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट, जस्ट इसके बाद, इसके मेटाफेज के ख़त्म होते ही होते यानी लेट मेटाफेज के बाद अर्ली एनाफेज आ जाएगा। एनाफेज मीन्स इनिशलाइजेशन, यानी ख़त्म होने वाला फेज़, जो ख़त्म होने की स्टेज से जस्ट पहले वाला होगा, दैट इज़ कॉल्ड द एनाफेज। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, सिस्टर क्रोमैटिड्स, अपनी बुक में देखते रहिए, सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोजोम्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोजोम सेपरेट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और दोनों अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे। आप देखें इस तरह से, तो ये आपकी दो पोल्स हो गए, तो यहाँ इस पोल पे और ये पोल, इसको अगर हम ए बी नाम दे दें तो ए बी पोल्स पे क्रोमोजोम्स चले जाएंगे। कब, डुप्लीकेट होने के बाद, आफ्टर डुप्लीकेशन। ओके, देन तो ये सबसे बड़ा इसका क्या कहते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा, और इनकी शॉर्टनिंग भी हो जाती है, अपोजिट पोल्स बाय शॉर्टनिंग ऑफ स्पेंडल फाइबर्स। किसकी, स्पेंडल फाइबर्स की शॉर्टनिंग, यानी बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ आएगा, दैट इज़ कॉल्ड द कंक्लूडिंग फेज़, कॉल्ड टीलोफेज। कंक्लूडिंग फेज जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टीलोफेज। टीलोफेज, इसको पहचानना बहुत ही आसान है। देन टू सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, दो नई सेल्स बन जाएंगे डॉटर क्रोमोसोम्स के, आप फिगर में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से बन जाएंगी ये, लेकिन पूरी तरह से अटैच नहीं होंगे। लेट टीलोफेज में ये पूरी तरह से डी अटैच हो जाएंगे, और दो नई डॉटर सेल्स तैयार हो जाएंगे विथ
प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगी, जबकि स्टार्टिंग में क्या होगा, जब सेल डिवीजन स्टार्ट होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाती है, यानी डिसअपियर हो जाती है फॉर द सेक ऑफ सेल डिवीजन। एंड आफ्टर दैट द मेजर सेल डिवीजन विच कंटिन्यूड, दैट इज कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस होगी। एंड साइटोकाइनेसिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म का सेल डिवीजन होगा। अब इस प्रोसेस को, इस पूरी सेल डिवीजन की प्रोसेस को याद करने के लिए एक यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म भी दे देंगे, जिसको आप याद रखिएगा। उसको क्या बोलेंगे, IP मैट। ओके, IP मैट। ये एक प्रोसेस का सीक्वेंस आपको याद दिलाता रहेगा। I फॉर इंटरफेस, P फॉर प्रोफेस, M फॉर मेटाफेस, A फॉर एनाफेस एंड T फॉर टीलोफेस। ओके, दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म। इसकी हेल्प से आप इन सारे फॉर्म फेजेस को अच्छी तरीके से याद रखेंगे। अगर यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होती है तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू।